हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 9th Maths Part 1, that means Algebra's 4th chapter, Ratio and Proportion. From that chapter, Ratio and Proportion, we are going to study this point, operations on equal ratios. You know, in previous practice sets we studied that ratios. Now two ratios are equal, then let us see the operations on that two ratios. If A upon B, here A upon B equals C upon D, these are called equal ratios. So here first property or first operation on equal ratios is invertendo. So what is that invertendo? If A upon B is equal to C upon D, these two ratios are equal, then what we can write? Then invertendo means write the inverse of, if two ratios are equal then their inverse ratio, inverse that means A upon B का inverse है B upon A. अगर दो रेशो इक्वल है तो उनका इनवर्स भी इक्वल आना चाहिए. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इन्वर्टेंडो. सो A upon B becomes B upon A equals D upon C. So we use this property invertendo. अगर हम लोग को इन्वर्टेंडो यूज करना है, ये दो रेशो इक्वल दिया है तो उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्स. इसलिए इसका नाम दिया है इन्वर्टेंडो. यानी टू रेशोज आर इक्वल then their inverse ratios are again equal. So that is the property. एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, if 2/3 is equal to 8/12, ये दोनों रेशो अगर इक्वल है, बोथ रेशोज आर इक्वल, दोनों का जो ये है क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3, ये भी अगर 2/3 है, देन व्हाट वी कैन राइट by invertendo, what we can write by invertendo, this 3/2 is equal to 12/8. So ये ऐसे एग्जांपल्स हम लोग उसमें देख सकते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो. सेकेंड प्रॉपर्टी इज अल्टरनेंडो. First one is invertendo, second one is alternando. So what is that alternando property? If two ratios are equal, if A upon B is equal to C upon D, then here you know A and C called first term, B and D called second term. Then the ratio, if two ratios are equal, then the ratio of numerators or ratio of denominators are equal. Yani ratio of first terms is equal to ratio of second term. That is called alternando. So here by this property A upon C is equal to B upon D. So this is by alternando. एक एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका देखते हैं, अगर यही सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2/3 इज इक्वल टू 8/12, देन बाय अल्टरनेंडो व्हाट वी कैन राइट, दिस 2/8 इज इक्वल टू 3/12. तो दोनों रेशो अगेन बिकम्स इक्वल, ये दोनों भी इक्वल आया. 2 1 जा 2 4 जा, यानी 1/4 आ गया. यहाँ पे भी 3 4 जा 12, 1/4 हो गया. यानी अगर दो रेशो इक्वल है तो उनका रेशो ऑफ द फर्स्ट टर्म्स और रेशो ऑफ द सेकेंड टर्म्स ये भी इक्वल आना चाहिए. दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अल्टरनेंडो. थर्ड प्रॉपर्टी इज कंपोनेंडो. थर्ड प्रॉपर्टी इज कंपोनेंडो. व्हाट इज दैट कंपोनेंडो? लेट अस सी. इफ A upon B is equal to C upon D, ये दोनों रेशो अगर इक्वल है, देन if two ratios are equal, then if we add this denominator यानी second term, B मतलब second term, हम लोग उसको denominator बोलते हैं, in the first term,
a plus b upon b is equal to c plus d upon d by componendo. So if a upon b is equal to c upon d, then a plus b upon b is equal to c plus d upon d. यानी न्यूमरेटर क्या कर रहे हैं, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो. तो कंपोनेंडो मतलब प्लस, इतना याद रखो, कंपोनेंडो मतलब प्लस. सो हियर सेम एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, 2/3 is equal to 8/12, then by componendo what we can write here, 2 plus 3 बोलो नको रे, आवाज तो है, 2 plus 3 divided by 3 is equal to 8 plus 12 divided by 12. तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो सेम रेशो वी गेट. ये 2 plus 3 इज 5/3 और ये हो गया 20/12. तो इसको वापस 4 3 जा 4 5 जा 5/3. दिस इज कंपोनेंडो. सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज. सो फोर्थ ऑपरेशन दैट इज कॉल्ड डिविडेंडो. वी आर स्टडिंग ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशो. So what is that dividendo? Dividendo मतलब minus. If a upon b equals c upon d, these two ratios are equal, then this a minus b, यानी जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म में से माइनस करो, सेकेंड टर्म रिमेन्स एज इट इज इक्वल टू c minus d upon d. दिस इज द कंपोनेंडो, सॉरी डिविडेंडो. एक एग्जाम्पल अगर हम लोग इसका लिखते हैं, 5/3 is equal to 10/6. These two ratios are equal, then by dividendo we get, so by dividendo we get 5 minus 3 divided by 3 is equal to 10 minus 6 divided by 6. इसको सिंप्लीफाई करो, 5 minus 3 is 2/3 is equal to 10 minus 6 is 4/6. तो सेम रेशो आ जाएगा 2/3. एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कंपोनेंडो and dividendo combine. Componendo, dividendo. So here this properties we have to use while solving the examples. If a upon b is equal to c upon d, then by componendo dividendo, addition of first term and second term and difference between the first term of second term. Here c plus d, c minus d. So these ratios are again equal. एक एग्जाम्पल अगर हम लोग को लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 5/3 is equal to 10/6. दो रेशो इक्वल है. Then by componendo dividendo, what we get? This 5 plus 3 divided by 5 minus 3 is equal to 10 plus 6 divided by 10 minus 6. तो 5 plus 3 हो गए 8 divided by 2 और ये 16 divided by 8. तो we get sorry here 4. So 4 1 जा 4 4 जा, यहाँ पे भी same ratio. So these are the operations on equal ratios. First one is invertendo, second one is alternando, third one is componendo, dividendo, and last one componendo, dividendo. So these are the 5 operations. Now the next point is application of properties of equal ratios. So we can use this properties of equal ratios, application of this properties of equal ratio to solve some equations. So applications of properties of equal ratios. So to solve the equation, एक एग्जाम्पल दिया है, सॉल्व एग्जाम्पल, वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे.
solve the equation means find the value of x. 3x square plus 5x plus 7 divided by 10x plus 14 is equal to 3x square plus 4x plus 3 divided by 8x प्लस 6। ये इक्वेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो 3x स्क्वायर सेम है, ये 5x है या 10x। अगर हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, यानी मल्टीप्लाई बाय 2। अगर हम लोग न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या आएगा, देयरफॉर 3x स्क्वायर 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10x प्लस 7 2 ज़ा 14 डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर रिमेन्स एज इट इज 10x प्लस 14 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8x प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय दिस 8x प्लस 6। यह रीजन हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों लोग साइड हम लोग। सो बाय डिविडेंडो यू नो डिविडेंडो मीन्स न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस करना है और डिनोमिनेटर ऐसे ही रखना है। तो फर्स्ट टर्म आएगा 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 14 माइनस 10x प्लस 14 डिवाइडेड बाय दिस 10x प्लस 14 इज इक्वल टू, ये साइड में भी सेम ऑपरेशन करना है। a मीन्स 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 माइनस b मतलब 8x प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय दिस b दैट इज 8x प्लस 6। सो वी यूज दिस डिविडेंडो। इसको सिंप्लीफाई करो, therefore this open the bracket 6x square plus 10x plus 14 minus 10x minus 14 divided by this 10x plus 14। तो यहाँ पे देखो 10x 14 get cancel, so here again open the bracket 6x square plus 8x plus 6 minus 8x and minus 6 divided by this 8x plus 6। here we get this plus minus get cancel, तो ये बचेगा 6x square divided by this 10x plus 14 is equal to 6x square divided by this 8x plus 6। from both side that 6x square get cancel if we divide both side by 6x square, तो we get 1 upon 10x plus 14 is equal to 1 upon 8x plus 6। now solve this equation, we get the value of x। कैसे? by cross multiplication 10x plus 14 is equal to this 8x plus 6, तो 10x माइनस दिस 8x, ए साइड में आएगा तो माइनस इज इक्वल टू दिस 6 माइनस 14, ये 14 वो साइड में गया, 10x माइनस 8x इज 2x इज इक्वल टू दिस 6 माइनस 14 इज माइनस 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू माइनस 4। सो इन दिस वे we get the solution of that equation, यानी solve the equation। so we can solve this equation using practice set 4.3 in which question number 1 is if a upon b is 7 by 3, the ratio a by b is given 7 by 3, then find the following ratios। हम लोग को कुछ ratios निकालना using the properties, अभी जो हम लोग properties पढ़ा वो properties use करके। so here first we have to find 5a plus 3b, ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। 5a plus 3b divided by 5a
minus 3b. Find this ratio. So how will we get? First write the given ratio. Therefore here a upon b is equal to 7 by 3. This is the given ratio. Now observe what we have to find. ये रेशियो हम लोग को फाइंड करना है. तो a का कोएफिशिएंट क्या है? 5. देखो a का कोएफिशिएंट 5, a का कोएफिशिएंट 5, b का 3, यानी a को 5 से मल्टीप्लाई करना है और b को 3 से. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय. a को 5 से किया यानी न्यूमरेटर में 5, तो डिनोमिनेटर में कितना? 3. 5 by 3. तो 5 by 3 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड. सो 5 by 3 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन b इज इक्वल टू 5 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 by 3. मल्टीप्लीकेशन करो तो 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 7 35 डिवाइडेड बाय दिस 9. नाउ यूज यहाँ पे क्या देखो एडिशन ऑफ द बोथ टर्म्स, यानी फर्स्ट सेकेंड टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन. कौन सा प्रॉपर्टी हो हम लोग को तुरंत समझना चाहिए. देयरफॉर बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो. तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी हम लोग को यूज करना है अभी दोनों साइड में. ये याद रखो 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 5a माइनस 3b. तो ये साइड में ऐसा ही करना है. 35 प्लस 9 और 35 माइनस 9. सो दिस वैल्यू इज 35 प्लस 9 44. और यहाँ पे 35 में से 9 गया 26. सो वी गेट 44 बाई 26. इसको अगर डिवाइड कर सकते हैं तो कर दो. सो वी गेट 22 by 13. So this ratio, value of this ratio is 22 upon 13. So in this way we can find the values of the ratios if one of the ratio is given a by b is 7 by 3. Now, again in question number 1 we have to find the value of 2a square plus 3b square और 2a square minus 3b square. तो सेकेंड में भी हम लोग वैल्यू फाइंड करते. देखो 2a square plus 3b square डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. ये रेशो हम लोग को फाइंड करना है. तो रेशो क्या दिया है मुझे? a अपॉन b इज इक्वल टू 7 by 3. बट हियर a स्क्वायर b स्क्वायर इज देयर. सो स्क्वायरिंग, सो वी गेट आफ्टर स्क्वायरिंग a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 by 9. तो यहाँ पे रीजन लिख दिया हम लोगों ने. क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया. अभी देखो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2 और b स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3. तो a स्क्वायर को हम लोगों को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है. b स्क्वायर को 3 से, यानी न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 3 से, यानी 2 by 3 से. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 by 3. तो यहां पे 2 by 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 by 3 इंटू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 3 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 9. तो ये 2a स्क्वायर अपॉन 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टू जा. यहाँ पे अगर डिवाइड कर सकते हैं तो करना है, नहीं हो सकता है. सो 98 डिवाइडेड बाय 27. ये रेशो मिला हम लोग को. नाउ बाय ये देखो ये क्या किया है? ये दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन, यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो व्हाट वी गेट? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. सेम ऑपरेशन वी हैव टू डू ऑन द राइट हैंड साइड. सेम हम लोग को राइट हैंड में करना है. 98 प्लस 27 सम ऑफ दिस टू टर्म्स, और यहाँ पे डिफरेंस 98 माइनस 27. देयरफॉर वी गेट 98 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 125 डिवाइडेड बाय 71. सो दिस रेशो 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर divided by this 2a square minus 3b square. The value of this one is 125
अपॉन 71। इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करना है, लेकिन यहां पे नहीं कर सकते। नाउ थर्ड वन, इसमें का सब क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब एंड डिवाइडेड बाय बी क्यूब। ये वैल्यू मुझे फाइंड करना है। फोर्थ वन जो है आप लोग कर सकते हैं अभी। सो यार a अपॉन बी क्या दिया है वो लिखना है 7/3। यहाँ पे a क्यूब बाई बी क्यूब है, बी क्यूब है तो क्यूबिंग, तो a क्यूब अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब आ गया 343 डिवाइडेड बाय दिस 27, 3 cube not a square. And then which property is used? By dividendo. So by dividendo, what we get? By dividendo a cube डिनोमिनेटर क्या करना है, माइनस करना है, अपॉन बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। यहाँ पे भी सेम 343 माइनस 27 डिवाइडेड बाय दिस 27। सो वी गेट दिस वैल्यू 343 में से हम लोग को 27 माइनस करना है, so we get 316 divided by 27. So this is the value of a cube minus b cube divided by b cube. We get this ratio. So here question number 1 is completed. Now let us see question number 2. उसमें क्या दिया, थोड़ा सा ये अलग है। Here a by b is not given. Question number 2 में ये रेशो दिया है मुझे, if 15a square plus 4b square, 15a square plus 4b square divided by 15a square minus 4b square is equal to this 47/7। ये मुझे दिया है। a by b is not given, then find the following ratios। तो मुझे a by b का वैल्यू पहले फाइंड करना है। then first find a upon b। पहला वैल्यू क्या फाइंड करना है मुझे, a upon b। so if we have to find any ratio using this, अगर ये दिया है मुझे कुछ भी रेशो अगर चाहिए तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस a अपॉन b। पहले a अपॉन b फाइंड करना है। तो कैसे करना है, अगर ऐसा कुछ दिया है और मुझे a अपॉन b फाइंड करना है तो डायरेक्टली कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार यूज करना है। सो लेट अस सी द गिवन रेशो इज 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डिवाइडेड बाय this 15a square minus 4b square is equal to 47/7. So by componendo dividendo, so denominator यानी ये जो है a मतलब 15a square plus 4b square numerator plus denominator डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर a प्लस बी, a माइनस बी, ये a हो गया। अभी ये माइनस b लिखते समय इसका साइन चेंज करना, 15a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये 4b स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे 15a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 47 प्लस 7 और यहाँ पे 47 minus 7. So we get 15a square plus 15a square, we get 30a square divided by this 4b square 8b square is equal to 47 में 7 ऐड करो 54 divided by this 40। अभी ये जो 30/8 है उसको उधर मल्टीप्लाई करते हैं। So we get a square upon b square is equal to 54/40 मल्टीप्लाइड बाई इसका रेसिप्रोकल यानी 30/8 है तो 8/30। सो 8 1 जा 8 5 जा, यहाँ पे 6 5 जा 30, 6 9 जा, तो वी गेट a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये 9 1 जा 9, डिनोमिनेटर हो गया 25, तो a अपॉन b इज इक्वल टू देयरफॉर a अपॉन b दिस रेशो इज 3/5 बाई टेकिंग रूट्स। तो पहले a बाई बी हम लोग को निकालना पड़ेगा। आफ्टर a बाई बी वी कैन फाइंड
एनी रेशो। तो इसमें हम लोग थर्ड और फोर्थ सम अभी देखते हैं, सेकेंड यू कैन डू। हियर a अपॉन b इज 3/5, ये वैल्यू हम लोग को मिला। नाउ इन थर्ड वन व्हाट वी हैव टू फाइंड, थर्ड सम उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अभी हम लोग को रेशो क्या मिला, a अपॉन b इज इक्वल टू 3/5, तो ये पहले फाइंड करना है रेशो। यहाँ पे क्या है, b पहले a बाद में है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसका इन्वर्टेंडो। सो b अपॉन a इज इक्वल टू 5/3, क्या किया, बाय इन्वर्टेंडो, तो वो लिख देना है क्या क्या किया हम लोगों ने, बाय इन्वर्टेंडो वी गेट। उसके बाद बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो स्क्वायरिंग बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/9, क्या किया मैं, स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1, और ए स्क्वायर का क्या है, 2, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 इंटू 9, सो हियर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/18। उसके बाद क्या किया है, एक बार एडिशन है, एक बार सब्ट्रैक्शन है, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, what we get b square plus 2a square divided by b square minus 2a square is equal to ये 25 plus 18 और यहाँ पे 25 minus 18, so we get b square plus 2a square divided by b square minus 2a square, this value is 43/7, बट व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस वन। यहाँ पे माइनस साइन ऊपर है और प्लस साइन नीचे है, यहाँ पे प्लस साइन ऊपर है, तो बाई इन्वर्टेंडो, एक बार और इन्वर्टेंडो कर दो, बाई इन्वर्टेंडो यानी उल्टा पुल्टा, बी स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का प्लेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 7/43, so in this way we get the value of this one. So in this way, in second example you can find the values of this one, b square plus 2, फोर्थ वन में क्या करना है, खाली यहाँ पे क्यूब करना है, बाकी सेम सम है, थर्ड और फोर्थ सेम सम है, हियर स्क्वायरिंग के जगह पे क्या करना है, क्यूबिंग, बाकी सेम है। So you can number 3 from practice set 4.3. What is question number 3, क्या दिया है देखो, if 3a plus 7b, if 3a plus 7b divided by this 3a minus 7b is equal to 4/3, then find the value of 3a square minus 7b square divided by 3a square plus 7b square, इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड दिस रेशो। तो अगेन व्हेनेवर, जैसा सेकेंड सम में हम लोगों ने इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके a बाई बी निकाला, सेम वही करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a अपॉन b फर्स्ट, a बाई b ये पहले हम लोग को निकालना है। सो देयरफॉर व्हाट इज गिवन, 3a plus 7b divided by this 3a minus 7b is 4/3, this is given ratio, so by componendo dividendo what we get, numerator plus denominator, componendo dividendo याद रखो, again here numerator माइनस डिनोमिनेटर करते समय साइन चेंज करो, -3a प्लस 7b, यहाँ पे ये बात याद रखना है, माइनस डिनोमिनेटर वी हैव टू चेंज द साइन, इज इक्वल टू 4 + 3 बोथ साइड एंड 4 - 3 बोथ साइड वी हैव टू यूज द सेम प्रॉपर्टी,
जो कंपोनेंडो डिविडेंडो है। तो यहाँ पे देखो 7b कैंसिल हो जाता है, 3a कैंसिल, 3a प्लस 3a वी गेट 6a, और यहाँ पे देखो 7b वी गेट 14b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 और 4 माइनस 3 इज 1। अभी जो 6/14 है इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं या उधर लेके सिंप्लीफाई करो। तो a बाई बी, द रेशो a बाई बी इज इक्वल टू 7/1 मल्टीप्लाइड बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस 14/6। तो ये 2 3 और 2 7 सो a अपॉन b is equal to 7 7 49/3. So this is our a upon b. So we get a upon b. उसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है, 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। तो ये फाइंड करना है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देयरफॉर स्क्वायरिंग a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर is equal to 2401 divided by 9. Now a square by b square is equal to this one. Here we write this one. Now here 3a square and 7b square, so multiplied by 3/7. So 3a square by 7b square is equal to 3/7 into this 2401 divided by this 9. तो यहाँ पे 3 1 3 3 और 7 से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 343/3. दिस आंसर वी गेट. सो वी गेट 3a स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं देखो. सो द रेशो इज 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7b स्क्वायर इज इक्वल टू 343/3. 343 divided by 3. Now use the property componendo dividendo. So by componendo dividendo we get this 3a square plus 7b square divided by this 3a square minus 7b square is equal to इसमें 343 plus 3 and 343 minus 3. So we get 3a square plus 7b square divided by 3a square minus 7b square is equal to 343 plus 3 we get 346 और यहाँ पे आ जाएगा 340. 2 से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा देखो. सो वी गेट, उसका इन्वर्टेंडो कर लेते हैं पहले. इन्वर्टेंडो यहाँ पे प्लस ऊपर है, यहाँ पे प्लस नीचे है, तो बाय इन्वर्टेंडो. सो वी गेट 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर. इन्वर्टेंडो यानी ऊपर नीचे करना है. 340 डिवाइडेड बाय 346 बाय इन्वर्टेंडो. क्या किया वो लिखना है हर जगह, बाय इन्वर्टेंडो. नाउ डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देते हैं. 170/173. दिस इज द वैल्यू of this ratio. So in question number 3, in this way, using componendo dividendo, then again componendo dividendo and invertendo, means using the properties of equal ratios, we get our answer. Now let us see question number 4. Solve the following equations. These are the applications of that properties of equal ratio. So question number 4, solve. ये रेशो यूज करते, प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग को इसका आंसर फाइंड करना है. सो फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर. फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 12x. सॉल्व मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स का वैल्यू फाइंड करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x square plus 8x plus 12 divided by 2x plus 3. So whenever this type of example is there and we have to find the value of x, यहाँ पे x square नहीं है तो ये जो x square छोड़ के जो बाकी का पार्ट है वो इक्वल करना है हम लोग को. तो कैसे, ये 12x है, यहाँ पे 3x है,
3 4 ज़ा, यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर में अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 5 4 ज़ा, यानी वापस 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से, तो वी गेट सेम। यानी हम लोग को डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो नीचे हम लोग ये डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/4, मतलब न्यूमरेटर में 1 सेम रहेगा, देयरफॉर वी गेट x² प्लस 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12x सेम आ गया, माइनस 4 5 ज़ा 20, देखो ये सेम करना है हम लोग को, इज इक्वल टू न्यूमरेटर हियर सेम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 4 से 4 2 ज़ा 8x एंड 4 3 ज़ा 12, ये इक्वल हो गया। ये इक्वल करने के बाद बाय डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी यूज करना है, देयरफॉर बाय डिविडेंडो वी गेट a माइनस बी, यानी x² प्लस 12x माइनस 20, a यानी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, माइनस करते समय इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12x और प्लस 20 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज, बिकॉज डिविडेंडो, you know the dividendo. So here again same property, dividendo numerator as it is, minus denominator उसका साइन चेंज कर दो, 8x माइनस 12 डिवाइडेड बाय दिस 8x प्लस 12 एज इट इज। तो यहाँ पे देखो ये 12x ये 20 कैंसिल, यहाँ पे भी 8x 12 कैंसिल, सो वी गेट x² divided by this 12x minus 20 is equal to x² divided by this 8x plus 12. So from both sides this x² get cancelled if we divide both side by x², so we get 1/12x minus 20 is equal to 1/8x plus 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी, तो 12x minus 20 is equal to 8x plus 12, तो 12x माइनस दिस 8x इज इक्वल टू 12 और ये प्लस 20, सो वी गेट 12x माइनस 8x, 12 में से 8 गया कितना 4x इज इक्वल टू 20 प्लस 12 32, देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4, x इज इक्वल टू 8. So in this way we get the value of x, means solve the equation, we get the value of variable. Now second example is 10x² plus 15x plus 63, 10x² plus 15x plus 63 divided by 5x² minus 25x plus 12 is equal to 2x plus 3 and divided by x minus 5. देखो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में x² टर्म है, देखो फर्स्ट एग्जांपल में x² टर्म डिनोमिनेटर में नहीं था तो हम लोगों ने दो टर्म इक्वल किया, अभी इसमें x² टर्म अगर है तो ये दोनों टर्म फर्स्ट टर्म जो है वो इक्वल करना है, 10x² है यहाँ पे 5x² है, तो कितना नंबर, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 से, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/2, सो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 10x² प्लस 15x प्लस 63 एज इट इज डिवाइडेड बाय दिस 5x², यहाँ पे 10x² बन जाएगा, माइनस 50x 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, प्लस 12 2 ज़ा 24 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 5 2 ज़ा 10. नाउ बाय कंपोनेंट डिविडेंडो, बाय डिविडेंडो वी गेट, डिविडेंडो प्रॉपर्टी यूज करना है, तो फर्स्ट टर्म
10x² प्लस 15x प्लस 63, ये फर्स्ट टर्म हो गया। डिवाइड माइनस सेकेंड टर्म माइनस करना है तो इसका साइन चेंज करते हैं, 10x² प्लस 50x एंड माइनस 24 डिवाइडेड बाय दिस 10x² माइनस 50x प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय दिस 2x माइनस 10। यहाँ पे साइन चेंज करना है तो 10x² और 10x² गेट कैंसिल, यहाँ पे 2x और 2x गेट कैंसिल। सो वी गेट 15x प्लस 50x, 15 प्लस 50 वी गेट 65x। न्यूमैरेटर देखो 65x माइनस 63 और ये 24 है, तो 63 में से 24 माइनस कर दो 39 डिवाइडेड बाय दिस 10x² माइनस 50x प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 13 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10। तो देखो 13 कॉमन है, डिवाइड बाय 13 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 13 से अगर डिवाइड किया मैं तो क्या आएगा 13 5 5x प्लस 13 3 5x प्लस 3 10x² माइनस 50x प्लस 24। यहाँ पे 13 से किया तो 1/2x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 13 से डिवाइड किया। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो अभी। सो वी गेट 10x² दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं अभी। सो वी गेट 1 इंटू दिस डिनोमिनेटर यानी 10x² माइनस 50x प्लस 24 एज इट इज इक्वल टू, इनका करते हैं 5x प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 2x minus 10, 2x minus 10. Now open these brackets. So 10x² minus this 50x plus 24 is equal to, ये 5 2 10x² minus 10 5 50x plus 3 2 6x और माइनस 30, ये ब्रैकेट ओपन किया तो 10x² from both side, this 50x minus 50x same term get cancel, so we get this 6x minus 30, इसको राइट साइड में लिखते हैं, इज इक्वल टू ये आएगा 24। तो 6x इज इक्वल टू 24 प्लस 30 यानी 6x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 6 यानी x इज इक्वल टू 9। तो इन दिस वे we can solve the second sum from question number 4। उसमें क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 1/2 यानी ये फर्स्ट टर्म इक्वल किया, इसमें अलग अलग सम है, सभी सम अलग अलग है। नाउ लेट अस सी थर्ड सम फ्रॉम दिस क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा सम देखते हैं, 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x minus 1 bracket square divided by 2x plus 1 bracket square and minus 2x minus 1 bracket square is equal to something 17/8. Whenever there is a same, if denominator numerator same है, खाली प्लस माइनस का फर्क है, ऐसा अगर हम लोग को इक्वेशन आता है तो पहले क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो सीधा। सो बाय कंपोनेंडो and dividendo, so by componendo dividendo numerator plus denominator और नीचे क्या आएगा, न्यूमैरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमैरेटर क्या है देखो, 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिनोमिनेटर माइनस दिस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूमैरेटर 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर, तो इसका साइन चेंज करो, माइनस 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट कैंसिल होता है, प्लस माइनस यहाँ पे ए कैंसिल होता है, और यहाँ पे भी हम लोग को सेम 17 + 8 दोनों साइड में यूज करना है, 17 - 8. सो हियर वी गेट 2 टाइम्स 2 इंटू ब्रैकेट 2x + 1 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट दिस 2x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर. ये 2 और कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 17 + 8 इज 25, और ये 17 - 8 इज 9. ये स्क्वायर है दोनों साइड का, ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकालो. सो टेकिंग रूट्स, दोनों साइड का रूट्स लेते हैं अभी. सो वी गेट 2x + 1 and divided by 2x - 1 is equal to 5/3. Now by cross multiplication करो, 5 into 2x - 1 is equal to 3 into 2x + 1. ओपन करो ब्रैकेट, 5 2 ज़ा 10x - 5 is equal to 3 2 ज़ा 6x + 3. Now solve this equation. Therefore we get this 10x minus this 6x. 10x और 6x ये साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, -6x इज इक्वल टू, ये बाजू में 3 है, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस 3 + 5. सो 10x - 6x इज 4x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 8/4. सो x इज इक्वल टू 2. सो इजीली वी गेट the value of x in question number 3 by componendo dividendo. So here this 4 and 6 all are same. यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, 4 में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, और 6 में क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट्स. ये ऐसे सम है. तो 4th और 5th और 2 सम हम लोग देखते हैं. लेट अस सी दैट 4th one रूट इज देयर, रूट 4x + 1 प्लस रूट x + 3 divided by this root 4x + 1 minus root x + 3 is equal to something 4/1. तो whenever न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, खाली प्लस माइनस का फर्क है, तो क्या करना है, सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो बाय componendo dividendo. So we get this numerator यानी 4x + 1 root of this one plus root of x + 3 plus denominator यानी root 4x + 1 and minus root x + 3 divided by, ये numerator as it is रूट 4x + 1 प्लस रूट x + 3 माइनस डिनोमिनेटर, तो इसका साइन चेंज करो, माइनस रूट 4x + 1 और माइनस प्लस रूट x + 3 इज इक्वल टू, ये बाजू में आएगा 4 + 1 एंड 4 - 1. तो हियर दिस x - 3 का जो प्लस माइनस ब्रैकेट कैंसिल, हियर 4x + 1 का कैंसिल हो जाएगा. तो ये ब्रैकेट 2 टाइम्स, ये टर्म 2 टाइम्स आ गया, तो 2 इंटू रूट 4x + 1 और डिवाइडेड बाई ये x + 3 का टर्म 2 बार आ गया, तो 2 इंटू रूट x + 3 इज इक्वल टू 4 + 1 5/3. ये 2 गेट कैंसल. नाउ स्क्वायरिंग, यहां पे रूट है इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करो अभी, तो यहां का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 4x + 1 डिवाइडेड बाय x + 3 इज इक्वल टू, ये हुआ 25/9. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 इंटू दिस वन, 25 इंटू दिस 9 इंटू 4x + 1, बड़ा टर्म पहले लेना है, एंड 25 इंटू x + 3. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, 9 4 ज़ा 36x प्लस 9 1 ज़ा 9 इज इक्वल टू, ये 25 इंटू x इज 25x प्लस 25 3 ज़ा 75. नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन. 36x, ये 25 ये साइड में आएगा तो -25x,
इज इक्वल टू ये 75 और ये -9, सो वी गेट 36 माइनस 25 मतलब 11x इज इक्वल टू 75 में से 9 माइनस कर दो, 66, so x is equal to 66 divided by this 11, so we get x is equal to 6. So in this way we can solve any equation from that question number 4. 4x plus 1 bracket square plus 2x plus 3 bracket square divided by this 4x square plus 12x plus 9, 61 by 36. Now how to solve this one? This is a different sum from other sums. ये थोड़ा अलग है. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देखो, if we observe this denominator 4x square प्लस 12x प्लस 9, ये किसका स्क्वायर है? 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. तो 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस बिकम्स, ये किसका स्क्वायर? 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर. करके देखो, 2x a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा 6x 2 जा 12x प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 61 अपॉन 36. नाउ बाय डिविडेंडो, ये सेकेंड टर्म कॉमन हो गया. सो बाय डिविडेंडो में क्या करना है? न्यूमरेटर यानी 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस दिस डिनोमिनेटर यानी 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 61 माइनस 36 और ये 36. तो यहाँ पे ये जो सेकंड ब्रैकेट है कैंसिल हो जाता है. सो वी गेट 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर divided by this 2x plus 3 bracket square is equal to 61 minus 36. So is equal to 61 minus 36 is 25 divided by 36. Now taking roots, दोनों साइड का रूट निकालो. So 4x plus 1 divided by 2x plus 3 is equal to 5 by 6. यहाँ पे लिखा taking roots, रीजन लिखते जाओ. Now by cross multiplication, so here 6 into bracket 4x plus 1 is equal to 5 into bracket 2x plus 3. अब ये ओपन करो. So 6 4 जा 24x plus 6 1 जा 6 is equal to, ये हो गया 5 2 जा 10x and plus 5 3 जा 15. So 24x minus 10x is equal to 15 minus 6. 24 minus 10, we get 14x is equal to 15 minus 6 is 9. So x is equal to 9 by 14. So in this way we get the value of x 9 by 14. So here this practice set 4.3 is completed. So dear friends, if you have any doubt in this ratio and proportion or in this practice set 4.3, then write in the comment box. I definitely clear your doubts. And if you like the videos, please like and subscribe the channel so that you will get the upcoming or new videos, and share these videos to your friends. Thank you.